हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 3। ओके, नाउ एज वी टॉक अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, आप सबसे पहले बताइए काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। तो आप सोचते होंगे केमिकल्स अगर मूव कर रहे हैं, नो एक्चुअली मूव क्या कर रहे हैं, केमिकल्स जो है वो रिएक्टेंट से दे आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स। Okay, so we are going to study in this chapter how we can speed up the reaction, or how we can slow down the reactions. What are the factors that affect the speed of reaction or rate of reaction, right? Then we want to study the kinetics, means what is the molecularity or order of reaction. Okay, then with the help of the interesting part is, with the help of rate constant, we can find out in how much time the substance will be reduced to half, or substance will become one third, or if there are two reactions at taking place at two different temperatures, and you know the एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप उसका रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अगर एक का दिया हुआ है, दूसरे का निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स कम वन बाय वन देखते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा है, आप बहुत जल्दी से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं, what is rate of reaction, right? Now rate of reaction is actually the change in the concentration of reactant. Suppose एक reactant है A और एक reactant है B, they are combining to form C product. तो A इनिशियली क्या होगा, जब टाइम ज़ीरो होगा, से इनिशियली A 1 है, B 1 है और C 0 है। बट आफ्टर टाइम T व्हाट विल हैपन, A में से कुछ निकल जाएगा, से एक्स अमाउंट निकल गया, B में से एक्स अमाउंट निकल गया, और C सपोज यहाँ पे 2x बन गया। ओके, सो what is actually happening, there is change in the concentration of reactant. तो reactant क्या हो गया, ये डिक्रीज कर गया, और concentration क्या हो गई, इंक्रीज कर गई ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन का हम मेजरिंग यूनिट देखेंगे तो इट इज मेजर्ड, right, rate is what it is, rate means concentration upon time. Concentration is measured in terms of moles per liter divided by time, so the unit is moles per liter per second, or moles per liter can also be written as atmosphere per second. Now the rate can be in three ways. It can be very fast, it can be moderate, it can be slow. ओके, तो रिएक्शन हमारे तीन तरह के हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर फास्ट है तो आपको उसी समय दिख जाएगा, बट अगर मॉडरेट है, स्लो है, और आपको उसका रेट निकालना है, देन वी जनरली गो फॉर इंस्टेंटेनियस रेट, उस समय एट दैट टाइम। ओके, what is the rate? And sometimes reaction is moderate, what do we do, हम उसका एवरेज रिएक्शन रेट निकाल लेते हैं। Okay, and then we say okay, it is fast or moderate or slow. ना जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी। हियर एक्स मीन्स द concentration and t means time. So small t means little change. So when there is change in concentration of reactant, right, then we use the term minus, because in reactants the concentration is decreasing, and when we talk about products then we take plus sign. Okay, so when we write dx by dt, it is rate of change of concentration with respect to time. If I have written this, right, minus, that means I'm talking about reactant, and if there is just dx by dt, that means I'm talking about products. Okay, when we talk about average, then in that case it is change, right? So this is change, so triangle is represented with change. So small t means very little change, and triangle over here means respectfully good change. Okay, अब हम आ जाते हैं, what are the factors that affect the rate of reaction. कोई भी reaction है उसका हम स्लो फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सबसे पहले हम जितना, इट्स लाइक अगर आपके पास ज़्यादा होमवर्क होता है, आपकी स्पीड ज़्यादा होती है,
ओके, सो अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा है तो रेट आपका फास्ट होगा. देर आर सर्टेन रिएक्शंस जो एंडोथर्मिक है, तो वो क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर जो होगा या हीट होगी दैट विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो अगर आप हीट देते हैं, सो व्हाट विल हैपन, इट इज़ गोइंग टू फेवर अ बैकवर्ड रिएक्शन. ओके, या स्लो डाउन हो जाएगा. देन देर आर सर्टेन reactants which are in gaseous state. In that case, pressure plays a very important role. जैसे अगर आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया, it is forming what, ammonia. In this case, pressure plays important role. Then there are certain reactions where catalyst is important. तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा, बट इफ कैटलिस्ट इज देयर तो रिएक्शन विल टेक प्लेस अर्ली, राइट, एंड इन लिटिल टाइम. कि इसको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. देन सरफेस एरिया प्लेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिएक्टेंट. अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया हाई है तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा. ऐसे ही नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सो इफ रिएक्टेंट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, फास्ट होगा. रिएक्टेंट इज कोवैलेंट कंपाउंड, स्लो हो जाएगा. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट we talk about rate law. So what is rate law? It is actually the mathematical relationship between the rate of reaction and the molar concentration of the reactants. Okay, so how do we define if there is a reaction A combining with B? So small a is the molecule, small b is the molecule for B. So the rate is equal to dx by dt is equal to rate constant k and active concentration of A raised to the power A, right, and concentration of B raised to the power B. Okay, now suppose there are three components or three reactants forming D, and here I say P, here I say Q, here I say R. So the rate will be equal to K, active concentration of A, B, C. So what are we taking? We are just taking reactants, okay, and then their moles, they are taken as powers. So here it will be P, Q and R, right? Now we determine these values P, Q, R or A, B experimentally, right, and when we add, this becomes the order of reaction. So the experimental value is order of reaction and the theoretical value is known as molecularity of reaction. This K is known as rate constant K or specific reaction rate, right? It is denoted with K, and the K becomes equal to rate when the concentrations are in term of unity. तो अगर आपके reactants 1 है तो that means what will happen, rate will become equal to rate constant. अब हम जान लेते हैं rate constant के बारे में. Rate constant क्या है? It is denoted with small k, and the best part is अगर आपका कोई रिएक्शन फास्ट है, स्पीड अप है और बहुत जल्दी हो रहा है, क्विक हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा इफ़ यू टेक क्रैकर्स, एंड क्रैकर्स में अगर आप अनार लेते हैं या बॉम्ब लेते हैं, इट गोज़ वेरी फास्ट, और अगर फुलझड़ी लेते हैं तो वो धीरे धीरे चलती है. तो सेम भी अगर कुछ फास्ट हो रहा है दैट मीन्स उसका के हाई है. सो faster reaction will have high rate constant, or you can say greater is the, हम ऐसे कह सकते हैं, greater is the rate constant के higher is the reaction rate or higher is the rate of reaction. Now K जो है it depends upon temperature. You change the temperature, K changes. और बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, ना ये इम्पॉर्टेंट किस लिए, ये आपके एमसीक्यू जो आते हैं या रीजनिंग असर्शन आते हैं उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो इसको देख लेंगे. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. तो कोई भी रिएक्शन के दो पार्ट है,
या तो हम निकालेंगे उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या हम निकालेंगे उसका मॉलिक्यूलैरिटी. सो मॉलिक्यूलैरिटी इज एक्चुअली द थियोरेटिकल पार्ट वेयर इट टेल्स यू द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दी एलिमेंट्री रिएक्शन. ओके, सपोज आपके घर में पार्टी है, राइट, और आपके घर में सपोज देर आर 7 मेंबर्स. तो आप क्या अज्यूम करते हैं कि ऑल 7 मेंबर्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड विल टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पार्टी. ठीक है. अब क्या हुआ, जब पार्टी हुई, पार्टी वाले दिन आपने देखा कि आपके 4 मेंबर्स सपोज बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और बाकी जो 3 थे वो अपने फ्रेंड में बिजी थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं. ओके, सो 7 क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, और 4 जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो हाउ डू यू नो, जब तक पार्टी होगी नहीं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा नहीं. तो आपको क्या ध्यान रखना है, दैट थियोरिटिकल वैल्यू है तो मॉलिक्यूलैरिटी मिलेगी, और अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा. ना अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो यू विल सी दैट मॉलिक्यूलैरिटी जो होगी, कभी आपने रिएक्शन ऐसा नहीं देखा होगा कि रिएक्शन हो आपका से 0.3 A plus 2.1 B इज इक्वल टू से 2.8 D. अब ये क्या होते हैं, दीज आर फ्रैक्शंस. ओके, यू विल ऑलवेज फाइंड 1 2 3 होल नंबर्स. तो मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज इन होल नंबर. इट कैन नेवर बी ज़ीरो एंड इट डज नॉट एक्सीड 3. तो ये क्या वैल्यूज है, ये है फॉर मॉलिक्यूलैरिटी. ये आपको याद रखनी है व्हेन यू कंपेयर मॉलिक्यूलैरिटी विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, फ्रैक्शंस में होगा. इट कैन बी इन होल नंबर्स. हियर मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो बट योर ऑर्डर of reaction can be 0 and rarely or it does not exceed 3. तो order of reaction और molecularity में एक ही similarity है कि 3 से ज़्यादा exceed नहीं करते. Now let's see certain reactions जहाँ पे order ही आपका 0 order है. That means दोनों ही reaction को control नहीं कर रहे हैं, they are in excess. Like for example hydrogen and oxygen gases ले लिया आपने, in presence of sunlight they combine. Okay, so both of them are not controlling the reaction and you get hydrogen chloride. Likewise, ammonia लिया, platinum में heat किया and it is breaking into nitrogen and hydrogen. So these are what? These are zero order reaction. Okay. Then we have example of first order reaction like hydrogen peroxide breaking into water and oxygen. Radioactive जितने भी disintegrations हैं they are first order reaction. Then inversion of cane sugar, अगर आपने cane sugar ले लिया and it breaks into glucose and fructose, so that is again example of first order. Right now हमारे कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर है तो हम इसको पहले ठीक से कर लेते हैं. फर्स्ट ऑर्डर के लिए देर इज द फॉर्मूला रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log R upon RT. So here RO is what, original amount divided by the amount left after time t. So this is time, this is original amount, right, and R is time, this is the amount left behind. Okay, so this is amount left. K is what, रेट कांस्टेंट. तो फर्स्ट ऑर्डर को अगर हम देखेंगे तो ये कंसंट्रेशन विल गेट कैंसिल्ड, ओनली टाइम. सो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम इनवर्स, राइट, इट इज पर सेकेंड. इसको हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट टाइम द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू द ओरिजिनल कंसंट्रेशन इनटू ई raised to the power minus kt. Okay, अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, so if we plot rate of reaction with respect to concentration of reactant, so we'll get a graph like this. ये हमको ग्राफ मिलेगा. तो y एक्सिस पे हमने rate of reaction ले लिया, x एक्सिस पे से हमने concentration of reactant ले ली. So we are getting this graph, right? So this slope is equal to rate constant k.
ठीक है. नाउ सिंस इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर में हमारे सारे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस आते हैं. तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में एक टर्म आती है हाफ लाइफ पीरियड. ओके, right, HLP. So half life period is denoted with T half. Now half life period is actually equal to 0.693 by K. इसमें क्या होता है, इस टाइम पीरियड में आपने जो भी अमाउंट लिया है दैट रिड्यूसेस टू हाफ. अगर आपने 10 ग्राम्स लिया है तो क्या हो जाएगा 5, राइट. सो सपोज लेट्स टेक एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है एंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज से 8 years. तो अगर आपने 10 ग्राम लिया है तो इन 8 years इट विल बिकम 5. नेक्स्ट 8 years में क्या होगा, आफ्टर नेक्स्ट 8 years में क्या होगा, दिस इज द ओरिजिनल अमाउंट, सो ये भी हाफ हो जाएगा, दिस विल बी 2.5. नेक्स्ट 8 years में क्या हो जाएगा 2.5 by 2 1.25. ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन, राइट. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के बाद कहते ज़ीरो, नो. सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो ये भी हमने कैसे निकाला है, ये 0.693 कहाँ से निकाला, हमने क्या किया, ये इक्वेशन ली, रेट कांस्टेंट के, इसको हम डिके कांस्टेंट लेमडा भी कह सकते हैं, 2.303. ये टाइम बन गया टी हाफ. जब हमने ये सपोज 10 लिया और ये ले लिया 5, हाफ कर दिया, सो दिस विल बिकम log 2 into 2.303 will be 0.693, right. ये time, now the formula can be T half is equal to, or you can write 6 is K is equal to 0.693 by T half. ओके, सो इसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है. इस पे न्यूमेरिकल आता है, एवरी ईयर एक न्यूमेरिकल आता है, तो उसको हम अच्छे से भी करेंगे. नाउ बाय सीइंग द ग्राफ हाउ कैन यू डिटर्मिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो इफ इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन लिया हुआ है, सो यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन, राइट. अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कंसंट्रेशन जो आप लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सेस and reactant A, so you will get this type of graph, right. Same type of graph you will get for second order, but remember first order में it is a raised to power a1, but when it is second order it is a raised to the power 2. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. देन देर आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आल्सो. सूडो मीन्स फॉल्स, मतलब देखने में आपको लगता है कि ये सेकेंड ऑर्डर होगा, राइट, बट होता क्या है, ये फॉल्स है, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर ओनली. तो इसमें क्या होता है, देर आर टू कंपोनेंट्स बट वन ऑफ द कंपोनेंट इज इन एक्सेस, सो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. So example is if you take ester and you hydrolyze it, it breaks into acetic acid and ethanol and you get this as pseudo first order reaction. अब आ जाते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्हीनियस इक्वेशन पे. ना आर्हीनियस इक्वेशन का मेन पर्पस था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको टेम्परेचर से रिलेट कर देना, ठीक है. और उसका सेकेंड पर्पस था एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट को भी, मतलब रेट और एक्टिवेशन एनर्जी को भी रिलेट कर देना. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो द आर्हीनियस इक्वेशन इज K is equal to A into e raised to power minus EA by RT, where A is Arrhenius frequency, EA is activation energy, right? R is universal gas constant and T is absolute temperature. Okay, now when we write this in terms of K log, so then log K is equal to log A minus EA by 2.303 RT. चिल्ड्रन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तो समझने के लिए है और ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए है. ओके, सो लॉग फॉर्म वी यूज इन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, राइट. और जो सेकेंड पार्ट था रेट और टेम्परेचर रिलेट करने का, वो ये है, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है डेफिनेटली कि देर आर टू रेट कॉन्स्टेंट्स, राइट, टेकिंग प्लेस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी.
या हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी दी है, दो टेम्परेचर दिए हैं, एक रेट कांस्टेंट दिया है, सेकेंड रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? राइट, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं लाइक आर्हीनियस इक्वेशन लेते हैं। सेम वी हैव टेकन आर्हीनियस इक्वेशन को ग्राफ फॉर्म में। तो अगर ग्राफ में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉग के प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे एंड टेम्परेचर लेते हैं 1/T, 1/T। ओके, एंड व्हेन वी सी जो प्लॉट आएगा वो हमारा ये आएगा, राइट, दिस इज द स्लोप। सो स्लोप इज इक्वल टू -EA/R। ये तो हो गया हमारा स्लोप, और ये जो इंटरसेप्ट करेगा दैट इज log A। इज दिस क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा आर्हीनियस इक्वेशन ग्राफ में। नाउ हम आ जाते हैं कोलिजन थ्योरी पे। कोलिजन थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो कोलिजन थ्योरी में जो दो टर्म्स दिए गए हैं वो है, एक हमारा एक्टिवेशन एनर्जी और एक दिया हुआ है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये समझ लीजिए कि व्हेनेवर अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, इट्स लाइक जैसे आपको घर से बाहर जाना है तो आपको घर से बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द डोर, ओके, या यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द गेट। सो दिस बिकम्स व्हाट, अगर आप गेट के आउटसाइड खड़े हैं तो आप बाहर हैं, अगर गेट के अंदर खड़े हैं तो आप इन हैं। सो दिस गेट बिकम्स व्हाट, द थ्रेशोल्ड एनर्जी, okay, and when every substance has or reactant has its own internal energy, so when we add little extra amount of energy, so then it combines to form activation energy, और activation energy के बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। सो अगर रिएक्टेंट है तो उसकी एनर्जी हो गई, ये ग्राफ में एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ले लिया हमने, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और ये सपोज हमारे प्रोडक्ट्स की एनर्जी है, ओके। सो व्हाट विल हैपन, रिएक्टेंट्स विल एब्जॉर्ब एनर्जी, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, राइट, एंड इट कंबाइंस टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बना है, ओके, सो दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओके। सो व्हाट इज दिस, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और activation energy is the energy which is actually added to the reactants, right, in order to reach to threshold energy. So we can say EA or activation energy is equal to threshold energy minus energy of reactant, ठीक है। ये समझ में आ गया, MCQ, रीजन असर्शन इन सब में इम्पॉर्टेंट है। नाउ रिमेंबर, जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब आप कैटलिस्ट लेते हैं, तो कैटलिस्ट लेते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, द रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है। अगर आपने कैटलिस्ट लिया तो कैटलिस्ट विल लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये भी एक क्लास 12 के स्पेसिफिक पेपर में था, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सो इट एक्चुअली लोअर्स द व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन था आयरन क्या कर रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ आयरन इन हेबर-बोश प्रोसेस, okay, so what is it doing, it is acting as catalyst, and what is it actually doing, it is decreasing or lowering the activation energy। उससे क्या होगा, देखिए ये रिएक्शन पहले हो गया, कम एनर्जी पर हो गया, राइट, इज दिस क्लियर। सो दिस इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम फिर वापस अपने रिएक्शन रेट पे आ जाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम इन टर्म्स ऑफ just a second, let me choose the pen. When we talk in terms of orientation of molecules या collision में बात करते हैं, तो we can also say the rate of reaction is equal to collision frequency into e raised to power minus a by RT, okay, ये बन गई हमारी, बस ये आपको समझना है। So rate is equal to Z. Now here it is minus. Okay, so minus sign is there.
and this is what the collision frequency of reactant, right? Collision frequency taking place between the reactant A and B into e raised to power minus EA by RT. तो अगर हम इसको z को हटा देंगे, so then this minus sign will become P, and this P is known as stirring factor, right? It is actually the orientation of the molecules that are colliding. ठीक है, राइट अब फिर वापस आ जाते हैं, इस रेट को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट रेट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी, right? So this is equal to collision frequency into fraction of effective collision. This is multiplication, right? So we can also say the collision frequency multiplied by fraction of effective collision is equal to collision frequency into e raised to power minus EA by RT. तो हमने क्या किया? रेट की जगह हमने ये रख दिया, ओके? हम उसकी जगह ये भी रख सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस फॉर्मूले. इसको हम करेंगे तो ये तो हो गया हमारा छोटा सा चैप्टर. ओके, अब हम जल्दी जल्दी कर देते हैं न्यूमेरिकल्स. अब हम एक न्यूमेरिकल सबसे पहले वाला लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये स्पेसिमेन पेपर में आया. दिस इज व्हाट द डेटा इज गिवन. दो रिएक्शन है, ए प्लस बी कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है से. इन्होंने नहीं दिया, हम मान लेते हैं से प्रोडक्ट बना रहा है सी. ओके, तो ए की कंसंट्रेशन दी है और बी की कंसंट्रेशन दी हुई है, राइट? इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी हुई है कंसंट्रेशन, और उनका रेट भी दिया हुआ है. सो दैट मीन्स व्हाट? अगर हम देखें तो क्या है? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी, यहाँ x और यहाँ पर y. दिस इज रेट लॉ, राइट? यहाँ रेट कितना है? सपोज ये हो गया हमारा रेट, ओके. रेट कांस्टेंट k, राइट? एंड देन क्या है? ये एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, राइट? एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ बी दी हुई है, और हमको इन वैल्यू से क्या निकालना है? एक्स एंड वाई निकालना है. सो इट सेज शो हाउ दिस डेटा कैन बी यूज टू रिड्यूस द रेट एक्सप्रेशन. हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो आपको ये समझ में आ गया ना? लेट्स सी व्हाट डू वी डू. हमने क्या किया? इसको देखा कि ये कंसंट्रेशन क्या है? 0.15 है ए की, राइट? जब हम इसको 0.15 से 0.30 करते हैं तो ये क्या कर दिया हमने? डबल कर दिया. अब हमने डबल किया तो देखा कि ये 1.10 से क्या हो गया? 4.40 इंटू 10⁻⁻4. तो चलो कॉमन हो गया, ये 1 से 4 हो गया. दैट मीन्स जब हम ए को डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जो रेट है वो 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है? ओके, सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे कि ए के रिस्पेक्ट में वो 2 टाइम्स है, राइट? क्योंकि इसको हमने 2 किया तो 2 2 सा 4 बन गया. हाँ ना, अब ये तो ऐसे नहीं करेंगे, साइंस है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा. तो प्रूफ करने के लिए लेट्स सी हम न्यूमेरिकल को तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं, राइट? सो व्हाट वी हैव डन, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर पेन ताकि दूर से दिखाई दे. ओके, तो हम क्या करेंगे? इसको रेट लॉ में लिखेंगे. सो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमने दो रेट्स ले लिए, R1 और R2, ठीक है? सपोज हमने लिया, ये ले लिया हमने R2 और ये ले लिया हमने R1. सो रेट R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू K. ना सेम हमारा इक्वेशन क्या है? रेट इज इक्वल टू K a to the power x and y to the power b to the power y. अब ये x और y हमको निकालने, ये हमने रख लिया के a और ये b, राइट? ऐसी रेट R1 डिवाइडेड बाय k, एक्टिव कंसंट्रेशन a and b.
नाउ व्हाट डू वी डू, हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा R1 कितना है 1.10 और R2 कितना है 4.40, ये हमने रख दिया R2, ये हमने रख दिया R1 इज इक्वल टू K, राइट। और A की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0.30 और यहाँ पे क्या है 0.15, यहाँ पे क्या है 0.30 और यहाँ पे भी 0.30, so we have kept. Now when we solve K will cancel, this will change to 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 is equal to, right, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, you will be left with 0.30 by 0.15, that means ये 2, right, this is power x. So 4 can also be written as 2 to the power 2 is equal to 2 to the power x. So when bases are same, now you can equate, so x is equal to 2. So that means A की जो concentration है इसकी वैल्यू क्या आ गई 2. Is this clear? Right, so this is how we deduce. ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, we can go for B component. इसी तरह से हम B के लिए निकाल सकते हैं। B के लिए हमने इक्वेशंस ले ली, से एक्सपेरिमेंट 1 और 3 ले लिया, राइट। तो हमने R2 रखा अपॉन R1 रखा, सेम उसी तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ ये अगर हम करेंगे कैंसिल तो ये आ जाएगा 8, राइट, K कैंसिल हो गया, ओके। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 4 तो ये हमने रख दिया 4 to the power x और ये आ गया 1/2 y, राइट। अभी देख लेते हैं इसको कितना हम 2 के पावर में रख सकते हैं। तो इसको हम रख सकते हैं 8 को वी कैन राइट 2 to the power 3, राइट, इज इक्वल टू 4, राइट, एंड दिस इज x। तो हम इसको क्या रख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट, वी नो दिस इज 2, तो हम क्या रख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू ये आ जाएगा 1/2, राइट, एंड दिस इज y। नाउ वी नो अगर ये वैल्यू 3 है, ओके, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं एंड वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। सो दिस इज हाउ वी कैन डिड्यूस द रेट। तो अगर मान लीजिए ये वैल्यू आ जाती है ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो रफली दिस विल कम एज 1, सो दैट मीन्स rate is equal to K A to the power 2 and B to the power 1, that means rate of reaction is 2 plus 1 is equal to 3, ओके। हाँ, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन इज 5730 years and you have taken an ancient piece of wood that has only 80% of 14 carbon left. That means क्या है 20% हमारा कंज्यूम हो गया। Okay, we have to calculate the age of the wood. So what do we do, हमें क्या given है, हमको दिया हुआ है T half, right? तो हमको T half given है, right? We know the formula K is equal to 0.693 by T half. Now T half हमको पता है 5730 है, okay? So what we can do is हम इसमें वैल्यू रख देंगे। When we keep the value we get answer 1.2 into 10 raised to power -4 per year, right? ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, हमको निकालनी है एज, मतलब हमको निकालना है टी। तो टी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, K इज इक्वल टू टी 2.303 बाई ये वाला टाइम हमको निकालना है लॉग ओरिजिनल अमाउंट हमारा कितना था 100 एंड अमाउंट लेफ्ट कितना है 80% बचा है ओनली, ओके। सो दिस इज हाउ वी प्लेस हियर। तो टी निकालना है तो टी हमने यहाँ रख दिया, के हमने यहाँ रख दिया, के की वैल्यू हमको पता ही है, सो वी प्लेस के हियर, ओके। Log original amount is 100, amount left behind is 80, so the answer will come as 1846 years, okay। Next एक और जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं। Now here it says that the rate of most of the reactions become double,
व्हेन टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 298 टू 308, तो क्या हो गया, रेट डबल हो गया, दैट मीन्स K2/K1 क्या हो गया, 2, डबल हो गया, 1 था ये 2 हो गया, तो 2/1, ओके, डबल हो गया। एंड टेम्परेचर क्या था, 298 टू 308, तो ये हो गया T1 और ये हो गया T2, okay, so T1 is 298, T2 is 308. Now it says you have to find out what activation energy, तो आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे, right, and what are you going to get, 2.303 R, I missed R, yes, okay, R की वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हम रखेंगे, and we are going to get the value. Is this clear? नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिर से इसी न्यूमेरिकल पे, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए बी की वैल्यूज दी हुई है, राइट, मोल्स पर लीटर, और उनका रिएक्शन रेट दिया हुआ है dx/dt। अब हमको निकालना है फर्स्ट नंबर, लाइक इसका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, और रेट लॉ क्या है। तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग वी विल ट्रांसलेट दिस इनटू rate equation. So ये first, second, third, so it will be rate is equal to K into concentration of A into concentration of B to the power m और n ले लेते हैं, right। now A की वैल्यू रेट अगर हमने लिया 4.2, तो ये हमने लिख दिया रेट 4.2, देन इंटू K, इसके लिए A की वैल्यू कितनी है 1.0, सो वी हैव रिटन 1.0 टू द पावर m, B is 0.15, so B is 0.15 to the power n, इस तरह से we have written for 1, 2 and 3, right। now what do, we take, suppose this is rate 2, this is rate 1, so we divide rate 2 by rate 1, इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, right। so what do we get, एक मिनट पीछे चला गया ये, okay, so these are the values, 8.4 divided by 4.20 into 10 is power minus 6, K रख दिया, वैल्यूज रख दी, when we solve ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ओके, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया आपका 2, राइट, इज इक्वल टू 2 to the power m, इसको हम 1 लिख सकते हैं, सो हियर m की वैल्यू क्या आ गई 1, सो दैट मीन्स द रेट is equal to K A to the power 1, मतलब with respect to A it is first order reaction। नेक्स्ट निकालते हैं, अब हम सेकंड लेंगे, तो ये हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप लेंगे तो एक बार आप ले लीजिए, जैसे आपने एक बार लिया A कांस्टेंट, ठीक है, तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं तो एक वैल्यू कांस्टेंट ले लीजिए, और जब विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं तो बी ले लीजिए, तो हमने जब ए निकाल रहे थे तो हमने ये कांस्टेंट वैल्यूज ले ली, राइट, हमने ये 2 एक्सपेरिमेंट्स ले लिए, और जब हम बी का करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक फर्स्ट एंड थर्ड, ओके, बिकॉज अगर हम सेकेंड लेते हैं तो ये वैल्यू मैच नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो हमारे को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आएगा, ओके। सो सेम हमने लिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट, राइट, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमारा रेट क्या है, तो एक बार रीडिंग फिर से देख लीजिए, हमारा रेट है 5.60 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
टेकन, ये थर्ड हो गया, ये हमारा वैल्यू जो है हमने लिए फर्स्ट वैल्यू रेट इज इक्वल टू के, दोनों के केस में ये 1 है, राइट, ए, और बी जो है इट इज़ 0.20 एंड दिस इज 0.15, राइट। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, ओके, राइट, और के कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 3, राइट, 5 3s and 5 4s, so 4/3। now this can be raised to power 1 क्योंकि दोनों के सबसेट सेम है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा रेट है, विद रिस्पेक्ट टू बी भी फर्स्ट ऑर्डर है,
तो हमारा व्हाट इज द टोटल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, राइट, a to the power 1 and b to the power 1। अब इंटरेस्टिंग है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, रेट हमको पता है, ओके, रेट वी नो, इसको यहीं पे कर लेते हैं, रेट हमको पता है, राइट, सपोज ये है, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, तो रेट कितना है 5.6 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, ए की कंसनट्रेशन कितनी है 1 to the power 1 एंड बी की कंसनट्रेशन कितनी है 0.2 to the power 1। Okay, so now we can calculate the value of rate constant K. So 5.6 into 10 raised to power minus 6 is equal to K into 1, or K is equal to 5.6 into 10 raised to power minus 6। तो ये हो गया K, right? Is this clear? है ना इंटरेस्टिंग। अब एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। It says that 25% of first order reaction complete हो चुका है 30 मिनट्स में। अब हमको निकालना है कितने टाइम में वो 90% कंप्लीट होगा। तो जब इस तरह के दो दिए होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वी हैव टू सी कि क्या क्या गिवन है। तो टाइम दिया हुआ है 30, तो व्हाट डू वी डू, हम सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ जब वो 25% पे कंप्लीट हुआ था। तो 25% से निकाल लेंगे तो हमको ये टी पता है, ओरिजिनल अमाउंट पता है, अमाउंट लेफ्ट पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे के, और फिर सेम फॉर्मूले में हम निकालेंगे कितने टाइम में वो 90% कंप्लीट होगा। ओके, सो व्हाट डू वी राइट के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग 100 अपॉन 20। Now this is 25% is completed, that means the left behind is 75। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 times, ये हो गया 4 times। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, टी हमारा यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, जब वैल्यू निकालेंगे तो के विल बी 9.59 to 10⁻³ per minute, राइट। अब हमको के की वैल्यू पता चल गई है। नाउ हमको क्या करना है, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, अब हमको निकालना है कितना कंप्लीट हो जाए 90%, मतलब कितना बचे 10। ओके, 100 minus 90, राइट, सो वी प्लेस इट हियर। के हमने पहले वाली इंफॉर्मेशन से निकाल लिया, तो अब हम निकाल लेंगे टाइम विच विल कम आउट एज 240.15 मिनट्स। है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, सो एक और कर लेते हैं। अगर से सपोज हमको क्वेश्चन दिया हुआ है दैट यू हैव टू राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, और रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए इक्वेशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी आर फॉर्मिंग d प्लस ई, एंड हियर इट सेज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है रिस्पेक्टिवली फॉर ए बी सी। तो ए का क्या है फर्स्ट ऑर्डर, बी के लिए क्या है सेकेंड ऑर्डर, सी के लिए क्या है जीरो ऑर्डर। सो व्हाट इज द रेट, रेट विल बी 1 plus 2 plus 0, that is 3। Okay, so we can calculate. Now this is the rate law expression। Is this clear, right? तो है ना इंटरेस्टिंग, ये चैप्टर है बहुत छोटा और इसमें से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, so you have to practice it well, right? So all the best kids, keep watching my video and I'm sure you would be enjoying chemistry, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। Okay, bye bye, happy learning।